بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بی ٹی وی نیوز سے اعجاز احمد بھٹی. ایک آج جانی پہچانی جگہ طارق روڈ پہ پہنچا ہوں جہاں ابو روحان صاحب جو ڈراموں میں بھی کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا چاندی کے زیورات کا کام بھی ہے. تو ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. آج ہم گفٹ بھی ان کے لیے لے کے آئے تو ہمیں پتہ چلا ہے. ہم نے بولا کیونکہ ایسے لوگوں کا بھی انٹرویو کیا جائے, اچھے اچھے لوگ بھی آپ کو دکھائیں, ملوائیں تو کیسا ہے. تو ہم ان کی شاپ کا آپ کو وزٹ بھی اوپر کا بورڈ بھی دکھاتے ہیں. ذرا میرا کیمرہ مین دکھا سکے ان کا بورڈ بھی دکھائیں آپ اوپر سے. تو ان کی یہ پکچر بھی ہے, یہ ہے طارق روڈ پہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی موجود ہوں. تو انشاءاللہ اوپر سے بورڈ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں ان کا فیس آپ. یہ ہیں ابو روحان صاحب کی شاپ ہے. تو ہم چلتے ہیں ان کے پاس تو آپ کو ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں. ہم ان کو گفٹ بھی دیتے ہیں آج جی. تو بہت ہماری خوش قسمتی ہے اور بزرگ ہیں ماشاءاللہ. تو ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ان کی شاپ پہ ہم پہنچے ہیں. تو ماشاءاللہ چلیں جی, ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ابو روحان صاحب آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ, آپ کی دعا ہے اعجاز میاں. آپ تشریف لائے محبت سے. آئی ایم ہائیلی آنرڈ. اور آپ کی محبت اللہ تعالیٰ قبول کرے. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے یہ کروں گا کہ آپ قرآن پاک میرے سے گفٹ لیں, اس کے بعد ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ قرآن پاک آپ گفٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز بھائی, یہ جو آپ نے گفٹ دیا ہے یہ کسی بھی کروڑوں روپے کے تحفے سے زیادہ اہم اور محبت سے آپ کی چیز ہے. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ آپ جیسے پیارے بھائی آج بھی موجود ہیں. اور آپ کے لیے دعائیں ہمیشہ میری شامل رہیں گی. اور میں انشاءاللہ اس میں مطالعہ بھی کروں گا اور آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. تو آپ کو کیسے لگا, آپ کو کیسے لگا آج میرا آنا یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ میں تو ایک انڈیویجول ہوں, اور لیکن آپ ہیں, عمران بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ جو آپ نے پہچانا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ عطا فرمائی کہ چلیں انکل ابو روحان کے پاس چلتے ہیں. بیٹا, یہ جو بھی نوجوان اس بات کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ میں اس بات کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے بچوں, اللہ رسول کے واسطے ماں باپ سے بڑھ کے بڑا پیر کوئی نہیں ہوتا. آپ تشریف لائے, یہ جو پہچان اللہ نے عطا فرمائی, محبت عطا فرمائی, یہ سب میری ماں کی دعائیں ہیں, یہ سب میرے باپ کی دعائیں ہیں. اور میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے یہ موقع دے رہے ہیں کہ میں کیمرے پہ بات کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا ہوا مل کے آپ سے. میں نے آپ کو آپ کی جو یہ اشتہارات میں نے دیکھے رکشوں کے اوپر بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور ٹی وی میں بھی دیکھا, ڈراموں میں بھی دیکھا. تو ہم نے بولا کیوں نہ چلیں ہم بزرگ سے کوئی اچھی گفتگو اور اچھے لفظ سن لیں تاکہ پبلک کے پاس بھی جائیں, تاکہ یہ ہمارے لوگ دیکھیں, ہمارے دیکھنے والے کہ یہ کوئی اچھا میسج بھی ملتا ہے ان لوگوں کو. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیے اعجاز بھائی, میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے بھی ایک وہ اتفاق ہے کہ وہ ایک ٹی وی شو میں یہ بات کر رہا تھا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, کچھ باتیں میری عمر نے جو مجھے سکھائی ہیں وہ میری شیئرنگ یہ ہے کہ اعجاز بھائی دیکھیے, ترقی کسی کی میراث نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بات خاص طور پہ نوجوانوں سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں, ترقی کسی کی میراث نہیں ہے. باپ ترقی یافتہ ہوتا ہے, اولاد ترقی نہیں پاتی. یا باپ پوری عمر اولاد کے لیے محنت کر کر کے اولاد کے لیے وہ ایک مقام آتا ہے جب اولاد کامیاب ہوتی ہے اور باپ کی خدمت کرتی ہے. تو ترقی کسی کی میراث نہیں ہے, نہ ترقی کوئی خرید سکتا ہے, نہ یہ آپ کے خاندانی ٹھپے سے ملتی ہے. ترقی کی بنیاد آپ کا عمل, آپ کی نیت, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ترقی کی بنیاد دیوانگی پر ہے. دیوانگی پر ہے ترقی کی بنیاد. جس کام کو کریں اس کو دیوانگی کی حد تک نہیں کرو گے
تو उसकी मेराज को नहीं पहुंचोगे। मैं ये बात अल्लाह के शुक्र में ये गुजारिश करूँगा। देखिए, मैं नाना दादा से, ददियाल ननियाल से, मैं एक ज्वेलरों का ख़ानदान का बच्चा था। 17 साल की उम्र में आई स्टार्टेड माई जॉब। एक सुनार का बेटा जाके, ये पीसी होटल कराची में है, पहले इंटरकॉन्टिनेंटल होता था 60 साल पहले, और आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। प्यारे भाई, एक सुनार का बेटा, एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग नेक लोग, मैंने एक होटल इंडस्ट्री की इब्तिदा अल्लाह ने मुझे जब कराई, आई वर्कड एज ए डिश वॉशर। मैंने बर्तन धोए इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में, और होते होते अल्लाह ताला उस बर्तन धोने वाले बहरे को जनरल मैनेजर बनाता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह। तो मैं अर्ज़ करूँ आपको, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तरक्की किसी की मीरास नहीं है। तरक्की आपकी नीयत, आपका अमल, और कहता हूँ लोगों को कि दीवानगी की हद तक जब तक काम नहीं करोगे, उसकी मेराज को नहीं पहुँचोगे। व्हेन आई वाज अ वेटर, मैं दीवाना था कि अगर मैं वहाँ ज़मीन पे भी पोंछा लगाता था तो इस अंदाज से लगाता था कि कोई औरत उसमें लिपस्टिक लगा ले, इतनी सफाई करता था। और होते होते वो बहरा जो है, वो अल्लाह ताला उसको जनरल मैनेजर बना देता है। अल्लाह ताला उसे जनरल मैनेजर बनाता है, और 32 मुल्क घुमा के 37 साल बाद उसी बहरे को, अब आज वो पीसी होटल है, उसमें एज एन एग्जीक्यूटिव, एज मैनेजर मेरा रब मुझे लाता है पाकिस्तान। और देखने वाले मेरे बच्चों, मेरे बहनों, अल्लाह के वास्ते ये एक बुज़ुर्ग की बातें हैं, सुन लो गौर से। ये आपका हक है, मुझसे सुन लो, ले लो, अपनी गिरह में बांध लो, और ज़िंदगी में तरक्की कर लो। एक वो बहरा जो मैनेजरों के मीटिंग रूम में मैंने अपने इन हाथों से पोछा लगाया, उसी रूम में मैनेजरों की मीटिंग होती थी, और मेरा रब उसी रूम में एज एन एग्जीक्यूटिव, एज एन मैनेजर 20 आदमी की टेबल पे, हेड ऑफ द टेबल पे मैनेजर बना के बिठाता है। वो है हमारा रब। माशाल्लाह जी। अब अबू रुहान साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया इमरान भाई, तो इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की। देखें, पोछा लगाया और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने, इतना स्ट्रगल, और मुझे ख़ुद मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो देखें, इतनी मेहनत इन्होंने की और इस कदर पहुँचे हैं माशाल्लाह। तो मज़ीद इनसे और भी गुफ्तगू करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, 77 साल की कहानियाँ सुबह तक भी ख़त्म ना होंगी। जी। बहरहाल, अर्ज़ ये है, आपको मैंने एक पहलू बताया। दूसरा पहलू ये बात है, एक बुज़ुर्ग होने के नाते, देखिए, जो गुज़र गया कल वो था, जो आज है वो हाजिर वो है, और आने वाला कल अभी नहीं आया। जी। अगर हम इस बात को समझ लें कि जो हो रहा है, हम जिस हाल में है, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है, अपने हाल को, अपने माहौल को, अपने हाल को हकीकत समझ के कबूल करें, और अल्लाह से दुआ करें, रहनुमाई मांगें, और जो रहनुमाई अल्लाह दे उस पे जुनून की हद तक, दीवानगी की हद तक सफ़र करें। अंग्रेजी में कहते हैं, यस्टरडे इज़ गॉन, टुडे इज़ व्हाट यू शुड डू, टुमारो हैज़ नॉट येट कम। नहीं हुआ। मैं, अल्लाह के करम है, अपनी खुद नुमाई की बात नहीं है बेटा, वो मैं पीला स्कूल, कराची 3 हट्टी का इलाका, गवर्नमेंट का पीला स्कूल,
66 साल पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल पीले स्कूल में पढ़ता था और मैं मैट्रिक में फेल हो गया। मैट्रिक में फेल हो गया, हिसाब के पर्चे में फेल हो गया। फिर एक पर्चा सप्लीमेंट में दे के और डी ग्रेड में मैट्रिक पास किया। ये मैं देखने वालों सुनने वालों के लिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ, रब तो सबका एक है। यहूदी हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अनबिया आए, जितनी अल्लाह की किताबें आईं, अगर हम उनको कबूल नहीं करेंगे और उन किताबों को कबूल नहीं करेंगे जो सब नबियों को अल्लाह ने दी, और फिर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आखिरी रब की किताब आई जो हम पढ़ते हैं, कुरान जो आपने मुझे तोहफ़तन दिया है, रब सबका एक है। रब सबका एक है। जब इंसान किसी मरहले में फंस जाता है तो जिसको भी खुदा मानता है वो कहता है यो अल्लाह, ओ माय गॉड। तो जब रब एक ही है तो उससे बातें करो। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, रब तबारक व तआला के यहाँ क्या कमी है? कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला तो साहिब कुन फयकून है। कुन का मतलब हो जा, और जब रब फरमाता है हो जा किसी चीज़ को तो वो हो जाती है। तो हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए कि मैं तो मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह के हबीब की उम्मत हूँ। बखुदा बता रहा हूँ, ये जो आपने मुझे कुरान पाक दिया है, मैं भी लोगों को हदियतन तोहफ़ा देता हूँ मायने वाला, और ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते एक सफ़ा कुरान पाक का मायनों से पढ़ लो, एक सफ़ा पढ़ लो बिल्कुल जी माशाल्लाह, मायनों से। और 360 दिन होते हैं साल के, 325, 30, 35, 40, 360 से आगे सफ़े नहीं होते कुरान पाक के। और एक सफ़ा पढ़ने से फिर जब आप 12वें 14वें सिपारे पर आएंगे तो बेटे कुरान पाक आपसे बात करना शुरू कर देगा। आप पढ़ेंगे, आपके जहन की बात का जवाब कुरान से आना शुरू हो जाएगा। 20-25 सिपारे पे आओगे तो मायने देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुरान पाक की लुगत जो है वो मुतकर्रर है, आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा दीन है, हमारा कुरान है। तो देखने वालों, अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अल्लाह के वास्ते जो भी आपका दीन है, रब सबका एक है। किसी दीन में कत्ल करना, झूठ बोलना, कोई दीन ऐसी बात नहीं सिखाता। अरे भाई उसको तो सीख लो, उस पर तो अमल कर लो। बहरहाल अल्लाह ताला एक बैरे को मैनेजर बनाता है। मैं पाकिस्तान 26 साल पहले आया तो लोग मेरे पैसे वैसे खा गए, तो मैंने अपनी कोई अंगूठियाँ घड़ियाँ बेचीं, और जो इस वक्त जहाँ आप बैठे हैं दुकान पे, ये अल्लामा इकबाल रोड, तारिक रोड है, इसी पे बराबर में एक गली है वो कहलाती है दुपट्टा गली। मैं आपको अर्ज करूँ, आई सिंपली बिकेम ज़ीरो। वो शख्स जो 5 स्टार होटलों में रहता था, मैनेजर था, मर्सिडीज़ें चलाता था, और मैंने अमेरिका कोई जन्नत का टिकट नहीं है, लेकिन मैंने प्राइवेट प्लेनों में भी सफ़र किया है। मुझे जहाज़ न्यूयॉर्क से अप स्टेट ले जाता था, उधर ले जाता था। मैं खुद नहीं चलाता जहाज़। वो आदमी जो न्यू कराची से 66 ईयर बिफोर 2 आने का टिकट लेके बस में लटक के आता था सदर, उस आदमी को अल्लाह ताला प्राइवेट प्लेन में सफ़र कराता है। एक अंजे का जहाज़ मुझे लेके जाता था। उस आदमी को अल्लाह, उसके बच्चे 5 स्टार होटलों में पैदा होते। रब के सिवा कोई है? नहीं है, नहीं है। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दोस्त बन जाओ, अल्लाह के फ़कीर बन जाओ,
मैं तो ये देता हूँ, तकरीर ये करता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह। तो हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? चैनल देखने वाले तो जिस तरह ढूंढ ढूंढ के आज इन्होंने मुझको इस काबिल समझा। इजाज़ भाई जो मेहनत कर रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ इजाज़ भाई, 1968 में 1968 में हम बहरीन में रहते थे और ख़तों का ज़माना था, टेलीफोन भी नहीं होता था। जी, ये तो आजकल तो मोबाइल और आपके ये सारी ये टेक्नोलॉजी, ये तो ज़माना एक अलग है। हम ख़त भेजते थे बहरीन से कराची, 5 दिन में आता, अब्बा 2-3 दिन बाद जवाब देते, फिर 5 दिन में वापस आता, 2 हफ्ते में अब्बा से सलाम दुआ होती थी। और आज मैं जो बात कर रहा हूँ, जब आप इसको ऑन करेंगे अपने चैनल पे डालेंगे तो क्या दौर आ गया कि माशाल्लाह पता नहीं कितने लोग हमारी बात को सुनेंगे। इजाज़ भाई देखिए, हर शोबा अपनी अहमियत रखता है और उसके साथ मैं एक बात आपको अर्ज़ करूं, सबसे पहले मैं लोगों को कहता हूं कि देखो, पहले अपने आप से बात करो कि मैं ये जी मिसाल के तौर पे मीडिया में जाना चाहता हूं, क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं कर सकता हूं? तो अगर अंदर से आवाज़ आ जाए करो, तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। और ये जो ज़माना है, लाखों हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग चैनल्स देखते हैं, ये करते हैं। आपकी मेहनत और आपका ज़ौक़, आपकी शख्सियत इसमें नज़र आती है, जो मैं आपके भी प्रोग्राम उसमें देखता हूँ यूट्यूब में। ये जब तक अंदर वाला ज़ौक़ नहीं होता तो भाई आगे बाहर कुछ नहीं आता। आप तशरीफ़ लाए, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी अल्लाह के हुक्म से। और बात यह है कि आप जो लोग चुनते हैं, आप जेन्युइन लोगों को चुनते हैं। खाली आपको वक्त नहीं, अपने कैमरे को नहीं भरना है, आपने वसूलियाबी करके और लोगों के दिमाग में डालना है। मैं आपकी मेहनत से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, आपके मिजाज से मुतासिर हुआ हूँ और मेरी दुआ है कि जो पैगाम आप फैला रहे हैं अपने चैनल से, उसमें मैं भी हाज़िर हो गया और 2 टूटी फूटी बातें मैंने की कि अल्लाह करे कि लोगों के दिल में आ जाएँ। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। सुनाई, अच्छी गुफ्तगू कुछ सुनाई। ये अबू रुहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने बोला चलो आखिर में इनसे इजाज़त लेते हैं। तो आपने बड़ी मीठी और प्यारी बातें सुनी। तो देख लें, हम ऐसे बुज़ुर्गों से मिलते हैं, आप तो इनसे अच्छी गुफ्तगू भी सुनाई आपको हमने। तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी, और कितने देर से मेहनत, इन्होंने इतना मेहनत की है और कहाँ पे पहुँचे हैं अभी इस वक्त। तो माशाल्लाह इनके लिए दुआ करिए, मेरे साथ हैं। अभी हम इनसे लेंगे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़। आप इजाज़त दें तो आखिरी बात एक कर देता हूँ। बोलें जी, बोलें। इमरान भाई वहाँ जब मैंने बीच में बात की थी कि पाकिस्तान में आया, लोग पैसे खा गए, मैं ज़ीरो हो गया, अल्लाह गवाह है कि मेरे अगली गली के अंदर एक कॉरिडोर में जगह थी खाली, तो मैंने 35,000 रुपये बचे थे, मैंने कोई घड़ी वड़ी बेची और फुटपाथ पे 4 फुट का अपना शोकेस लेके फुटपाथ पे बैठा, 5 स्टार होटेलियर, और 35,000 से ये काम शुरू हुआ था। आज हमारे भाई माशाल्लाह इस दुकान को भी कवर कर लेंगे एट ए क्लोजिंग पैरा। और आज मेरे रब ने यहाँ बिठा दिया, उसी तरह जिस तरह एक बैरे को मैनेजर बनाया था, वो इस काम की बैरेगिरी थी फुटपाथ पर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर अमल एक कदम से शुरू होता है। अगर आप हिम्मत करेंगे, अल्लाह से लौ लगाए रखेंगे, आप मेहनत करेंगे, सच्चाई करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो अल्लाह आपको 1000 मील का सफ़र भी पूरा करा देगा। बिल्कुल जी। और आज मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं अबू रुहान चांदी के डिज़ाइनर ज्वेलर हैं। ये मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी माँ की दुआएं, बाप की दुआएं हैं। और जैसे आप लोग टीवी पे भी देखते हैं जो आदमी, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम आपको टीवी पे देखते हैं, हम आपके साथ सेल्फी बना लें। ये भी मेरे माँ बाप की दुआ है। जब मैं 8वीं जमात में था तो कराची में ईस्टर्न स्टूडियो अब भी है, सिर्फ वही होता था, वहाँ फिल्में बनती थी। हम कहीं
کر کے اس کے اندر گھس گئے اور وہاں پہ ایک شوٹنگ ہو رہی تھی, وہاں بیٹھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کلب کا سین تھا, ہم تالی بجا رہے بیٹھ کے, اور میرے رب نے اس ٹوپی داڑھی کو بڑھاپے میں پہچان بنا دیا. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, اسی زمین پر ایسٹرن اسٹوڈیو کی جہاں میں 65 سال پہلے ایکسٹرا بن کے تالی خالی بجا رہا تھا, اسی فلور کے اوپر میں تاریخ کا کردار انارکلی ڈرامے میں تانسین کا کردار اسی زمین پہ کر رہا تھا جہاں میں بیٹھ کے تالی بجا رہا تھا. آپ کو اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ. تھینک یو جی, تھینک یو. اچھا دیکھیے, یہ عمران بھائی ماشاءاللہ تصویریں بنا رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن کلر کا یہ پلیک ہے, یہ پریزیڈنٹ ایوارڈ ہے شیرٹن کارپوریشن کا, اور یہ امریکہ میں کارنیل یونیورسٹی جس میں میں نے ہوٹل پڑھا اس کے سرٹیفکیٹ ہیں, اور یہ 3 سرٹیفکیٹ ہیں. کارنیل یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی ہوٹل کی یونیورسٹی ہے. اوپر اب آپ عمران بھائی دکھائیں گے, یہ محمد علی, یہ باکسر, اس نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے مجھے مصر کے اندر یہ دیا تھا اپنا فوٹو. نیچے میں اس کے ساتھ میں جو ہے وہ مذاق میں مکہ بازی کر رہا ہوں, تو وہ کہنے لگا تم مجھے مکہ مارو. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں, میں تیرا مکہ برداشت نہیں. کہنے لگا نہیں مذاق کر رہا ہوں, اور یہ میں اس کے ساتھ مذاق میں مکہ بازی کر رہا ہوں. یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ یہ مکے کے گورنر ہیں. یہ سب سے بڑا پہلا ہوٹل حرم شریف کے پاس جب کھلا تو اس کے افتتاح کا دن ہے, اور یہ میں اس کے اندر شامل ہوں, اور مکے کے گورنر ہیں. یہ بحرین کا رولر ہیں جو انتقال کر گئے, شیخ عیسیٰ, میں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں. اور یہ مکے کے ہوٹل کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. اور یہ بتائیے, بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس برتن مانجنے والے بیرے کو اللہ بادشاہوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے, اور مکے میں بھی 2 سال رہا ہوں. یہ جو تصویر ہے یہ سپر سونک جہاز سے بیٹھنے سے پہلے کی ہے. اس کے برابر میں تصویر یہ اتا ترک کا مقبرہ ترکی ہے.